Hi, my dear students. I am R.S. Pandey. Today I am present to take this third chapter of your prose, Beehive, The Little Girl. The Little Girl is your third chapter of your book, The Part of Beehive. Now today we have to take a study about a little girl and her behavior. What she thinks, what she does, what does she want, what she requirements from his parents. In this chapter, Catherine Mansfield wrote about the behavior of a little girl and her need, her desire, and her requirement from her parents. We will find in our life that when we were in our childhood, we think about our parents. Father does not give us time, father does not love us, and so on. In the same pattern, in this chapter, a little girl named Kezia also thinks about this. You will find that by her own experience, Kezia decided that there were different kind of fathers. There were different kinds of fathers. She thinks that her father was always busy in his office work. He had no time to talk to her because her father was a figure to be feared and avoided. Although she loves her father, but she feared him. On the other hand, she watched her neighbor play with his children. So, she thinks that her father does not love her. Her father does not care her. Her father does not understand her desire. But it we cannot say. If father has no time, if father is busy, so we should not say that father does not love us. On this basis, on this pattern, you will find new thought about a little girl. Catherine Mansfield Beauchamp Murray, 14th October 1888 to 9 January 1923, means only 36 years. She passed her life only 36 years. Was a prominent modernist writer of short fiction. Means she is great writer of short fiction who was born and brought up in colonial New Zealand and wrote under the pen name of Catherine Mansfield. She gave her pen name Catherine Mansfield. She revolutionized the 20th century English short story. She started worldwide not only because of other historical importance but also because her prose offers lesson in entering ordinary lives. At the Bay and Prelude and Mansfield most innovative and widely read works. So we will try to understand this chapter. I will try to tell you each and every word and explain in Hindi and English both. You will try to understand what I am telling you. So come on, your chapter. Before you read, do you feel you know your parents better now? क्या आप महसूस करते हैं your parents better now than when you were much younger? जब आप बहुत छोटे थे, क्या आप महसूस करते हैं आप अपने माता पिता को? Perhaps you now understand, शायद अब आप समझ सकते होंगे the reason for some of their actions that used to upset you earlier.
आपके बचपन में जब आपके माता पिता कुछ ऐसे कार्य थे जब आपको दुखी कर देते थे, अपसेट कर देते थे, उसका सही मतलब अब आप समझ पाते होंगे। उसका सही मतलब अब आपको समझ में आएगा कि बचपन में आपके कुछ दिल तोड़ने वाली बात माता पिता जब करते थे तो उसका कारण क्या था। बेटा, उसका कारण ये था कि वो अपने बच्चों को रत्न बनाते थे। अपने बच्चों को रत्न बनाने के लिए उनके दिल पर ठेस भी कभी कभी पहुंचाते थे, क्योंकि बच्चों की इच्छा जरूरी नहीं कि सही दिशा में ही हो। इसलिए बच्चों को वो रत्न बनाने के लिए उनके दिल पर कभी कभी ठेस भी पहुंचा दिया करते थे। दिस स्टोरी, ये छोटी सी कहानी अबाउट अ लिटिल गर्ल, एक छोटी सी लड़की के बारे में, हुज फीलिंग्स फॉर हर फादर, जिसकी भावनाएं, जिसकी प्रतिक्रिया अपने पिताजी के प्रति चेंज फ्रॉम फियर टू अंडरस्टैंडिंग विल प्रोबेबली फाइंड एन इको इन एवरी। डर से समझदारी में बदल गई। उनकी जो भावनाएं थी डर से समझदारी में बदल गई। शायद प्रत्येक घर में इसकी गूंज मिलती होगी। एन इको इन एवरी होम, हर घर में ऐसी बात होती होगी। हर बच्चों में ऐसा लगता होगा कि उसके पापा, उसके मम्मी, उसको देखने वाले, उसके पालन पोषण करने वाले उसको कम प्यार करने लगे हैं। ऐसा उनको लगता है कभी कभी। लेकिन आज इस कहानी को पढ़कर आपको पता होना चाहिए कि कोई भी आपको कम प्यार नहीं करता। आपके घर वाले आपको बहुत प्यार करते हैं, बस आपको रत्न बनाने के लिए, आपको अच्छा बनाने के लिए कभी कभी आपके दिल को ठेस पहुंचाते हैं। आइए हम सीधे कहानी की ओर चलते हैं। टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड डिवाइडेड। उस छोटी सी बच्ची के लिए ही मीन्स उसके पिताजी, वॉज ए फिगर टू बी फियर्ड, डरने लायक व्यक्ति थे, एंड अवॉइडेड, और उनसे बचा जाए ऐसे व्यक्ति थे। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क, हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले ही केम इन टू हर रूम, पिताजी उसके कमरे में आते थे, एंड गेव हर अ कैजुअल किस, और उसे एक कैजुअल किस देते थे। टू विच सी रिस्पॉन्डेड विथ गुड बाय फादर, जिसका रिस्पॉन्ड उस बच्ची की तरफ से था, गुड बाय करती थी कि पापा के वापस जाने का समय हो गया है। एंड ओह देयर वॉज ए ग्लैड सीन्स ऑफ रिलीफ व्हेन सी हर्ड द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर डाउन द लॉन्ग रोड। और जब वह उनकी गाड़ी की आवाज़ लंबी सड़क पर दूर जाते हुए कम होती जाती तो उसे बहुत खुशी और राहत महसूस होती। सेंस ऑफ रिलीफ, उसे बहुत खुशी और राहत महसूस होती थी। व्हेन, जब सी हर्ड, जब वो सुनती थी द नॉइस ऑफ द कैरिज ग्रोइंग फैंटर एंड फैंटर, धीरे धीरे आवाज़, जब गाड़ी चली जाती है तो आवाज़ धीमी होती जाती है दूर तक, डाउन द लॉन्ग रोड, दूर सड़क पर, तो उस बच्ची को बड़ी राहत महसूस होती है। चलो पापा घर से ऑफिस की ओर गए, क्योंकि पापा उसके लिए डर वाले व्यक्ति थे, सबसे खतरनाक व्यक्ति, डर लगना बच्ची को, ऐसे थे। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन ही केम होम, शी स्टूड नियर द स्टेयरकेज एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल। शाम के समय जब वो घर आते थे तो वो सीढ़ी के ऊपर एक छोर पर खड़ी हो जाती थी, एंड हर्ड हिज लाउड वॉइस इन द हॉल, और हॉल में उनकी आवाज़ को सुनती थी वो बच्ची। ब्रिंग माई टी इन टू द ड्राइंग रूम, हैजंट द पेपर कम एट, मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ, क्या पेपर अभी तक यहाँ नहीं आया? मदर, गो एंड सी ऑफ माई पेपर्स आउट देयर एंड ब्रिंग मी माई स्लीपर्स। ऐसी आवाज़ सुनती थी कि मेरी चाय मेरे ड्राइंग रूम में ले आओ, समाचार पत्र भी नहीं आएगा, मेरी चप्पलें लाओ, आदि आदि की बातें, स्लीपर्स मेरी ले आओ, इस तरह की बात पिताजी की उसको सुनाई पड़ती थी।
यह रोज का कार्यक्रम था। पापा जब वापस जाने लगते थे तो बच्ची को आकर एक किस करते थे और बच्ची उन्हें अलविदा कहती थी। दूर से खड़ी होकर उनकी गाड़ी को देखती रहती थी। गाड़ी की आवाज़ धीमी होती जाती थी और उसको लगता था कि पापा ऑफिस चले गए, यानी पापा से बहुत डरती थी। इसलिए उसके मन में बहुत खुशी होती थी कि पापा घर में नहीं हैं। शाम होते ही जैसे ही पापा अंदर आते हैं, मेरी चप्पल ले आओ, मेरी चाय ले आओ, अखबार ले आओ, ये सब जब बोलते हैं तो बच्ची फिर आकर स्तब्ध होकर वहीं सीढ़ी के कोने में खड़ी होकर सुनती है। केजिया, मदर वुड कॉल टू हर। माँ उसे बुलाती है, केजिया, इफ़ यू आर गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट। अगर अच्छी बच्ची बनना है तो आ जाओ और पापा के जूते के फीते खोल दो, यानी पापा के जूतों को उतार दो। माँ ऐसा कहकर उसे बुलाती है। पापा के आने के बाद माँ केजिया को ऐसा कहकर बुलाती है। स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स। धीरे धीरे बच्ची सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मोर स्लोली, बहुत धीरे चलती है। स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर। और धीरे धीरे फिर वो आती है, ड्राइंग रूम का दरवाज़ा खोलती है। By that time he had his spectacles on and looked at her over them in the way that was terrifying to the little girl. और उस समय तक पापा जब वो अंदर आती है तो उसके पिताजी चश्मा लगाए रखते हैं और उसकी तरफ ऐसे देखते हैं को टेरिफाइंग टू द लिटिल, लड़की की तरफ देखते हैं वो डर जाती है। बेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। केजिया जल्दी आओ और इन जूतों को उतार कर इन्हें बाहर ले जाओ। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? आज तुम क्या अच्छी बच्ची नहीं बनी हो? आज क्या तुम अच्छी बच्ची नहीं बनी हो? ऐसा कहते हैं। केजिया जवाब देती है, आई डिडंट नो फादर। मुझे नहीं पता पापा, मैं नहीं जानती पापा कि मैं अच्छी बच्ची हूँ कि नहीं। यू डिडंट नो? If you stutter like that, mother will have to take you to doctor. ये तुम ऐसे ही रुक रुक कर बोलती रहोगी तो तुम्हारी मम्मी तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाएगी। ऐसा किसने कहा? ऐसा पापा ने कहा बिटिया से। She never stuttered with other people. वो कभी भी तुतलाती नहीं है, रुक रुक कर नहीं बोलती किसी दूसरे लोगों से। Had quite give it up. But only with father, because then she was trying too hard to say the words properly. What's the matter? What are you looking so raised about? तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? क्या बात है? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. केजिया की माँ, मेरी इच्छा है कि तुम इस बच्ची को पढ़ाओ, सिखाओ, बताओ उसे कि ये इस तरह से आत्महत्या करने वाली स्थिति जैसी हमें न दिखाई पड़ा करे, ऐसी न दिखाई दी जैसे कि आत्महत्या करने जा रही हो। सब पापा उसे कहते हैं हियर केजिया, कैरी माई टी कप बैक टू द टेबल केयरफुली। केजिया, ये ले लो मेरा टी कप, चाय का प्याला, और इसे सावधानीपूर्वक मेज पर रख दो। He was so big, his hand and his neck, especially his mouth, when he yawned. वे बड़े भीमकाय थे, बहुत बड़े थे। ऐसा बिटिया कह रही है कि पापा उसके काफ़ी भीमकाय थे, बड़े थे। His hand and his neck, उनका हाथ और उनकी गर्दन, स्पेशली विशेषकर his mouth, उनका मुंह, when he yawned, जब कभी भी वो अपना मुंह खोलते थे यानी जम्हाई लेते थे तो बहुत भीमकाय दिखते थे। थिंकिंग अबाउट हिज एलॉन वाज लाइक थिंकिंग अबाउट जाइंट। अब उनके बारे में सोचने का अर्थ यही था कि वो किसी दैत्य से कम नहीं थे, या उनके बारे में सोचना मीन्स किसी दैत्य की कल्पना करना। ऐसा
बिटिया सोचती है पापा बड़े भीमकाय थे, विशेषकर उनका मुंह जब वो जम्हाई लेते थे तो ऐसा लगता था जैसे कोई दैत्य जम्हाई ले रहा हो। ऐसा बच्ची अपने पापा के लिए सोचती है, क्योंकि बहुत छोटी बच्ची है। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार को उनकी दादी माँ बच्ची को भेजती हैं, मम्मी पापा के पास ड्राइंग रूम में नीचे जाओ, उनसे प्यारी प्यारी बातें करो। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. लेकिन जब बच्ची वहाँ आती है तो पाती है कि मम्मी उसकी कुछ पढ़ रही हैं और पापा stretched out on the sofa, और सोफा पर टांग फैलाकर लेटे हुए हैं। His handkerchief on his face, उनके चेहरे पर रुमाल है। His feet on one of the best cushion, उनका एक पैर मुड़ा हुआ है, स्लीपिंग साउंडली एंड स्कोरिंग, और एक पैर उनका गद्दी पर है और एक पैर मुड़ा हुआ है और स्लीपिंग साउंडली एंड स्नोरिंग, और तेज खर्राटे मारकर सो रहे हैं। बिटिया तो गई है कि उन लोगों से बात करने के लिए, लेकिन अब क्या हो, अब तो वो सो रहे हैं। देख रहे हैं आप फिगर में, यहाँ लिखा हुआ है द लिटिल गर्ल ऑलवेज फाउंड मदर रीडिंग एंड फादर स्ट्रेच्ड आउट ऑन द सोफा। बेचारी बच्ची आती है मम्मी से कुछ बात करने और पापा से कुछ बात करने, लेकिन पापा जी इधर देखो पड़े हुए हैं और मम्मी इधर कुछ पढ़ रही हैं, बिटिया यहाँ खड़ी होकर देख रही है। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. अब केजिया क्या करती है, एक स्टूल पर बैठ जाती है आकर, और स्टूल पर बैठ जाती है और उसके बाद पापा के जगने का गंभीरता से इंतजार करती है कि पापा अभी जागेंगे, और पापा जागेंगे तो हाथ पांव फैलाते हुए पूछेंगे कि क्या टाइम हुआ, स्टेज एंड आज द टाइम, देन लुक्ड एट हर, उसकी तरफ देखते हुए उससे पूछेंगे क्या टाइम हुआ। डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन बॉल। इस प्रकार से भूखी प्यासी मत दिखाई दो केजिया, स्टेयर सो केजिया, इस तरह से भूखी प्यासी मत दिखाई दो। यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल, तुम तो एकदम भूरे रंग के उल्लू की तरह दिखाई दे रही हो। अब आगे देखें, वन डे व्हेन शी वाज केप्ट इंडोर्स विथ अ कोल्ड, हर ग्रैंडमदर टोल्ड हर दैट फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक and suggested she should make him a pin cushion for a gift out of beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब केजिया को अंदर रखा गया, उस समय उसको सर्दी जुकाम था, विथ कोल्ड, सर्दी जुकाम से परेशान थे, उसको घर के अंदर ही रखा गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर, उसकी दादी माँ ने उससे बताया दैट कि फादर्स बर्थडे वाज नेक्स्ट वीक, पिताजी का जन्मदिन है अगले सप्ताह। एंड सजेस्टेड, और उससे कहा गया शी शुड मेक हिम अ पिन कुशन फॉर अ गिफ्ट, और दादी माँ ने बताया कि तुम अपने पापा के लिए सुझाव दिया उसे कि एक पिन कुशन बनाओ, टाई में लगाने वाली बनाओ, आउट ऑफ ब्यूटीफुल पीस ऑफ येलो सिल्क, पीले रेशमी रंग के कपड़े के सुंदर उपहार देने के लिए पापा के लिए एक कुशन बनाओ। पिन कुशन बनाने के लिए दादी माँ ने कहा। बिटिया को पता चला कि पापा का जन्मदिन है अगले सप्ताह। लेबरसली विथ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टेज्ड 3 साइड, अब बड़े ही परिश्रम के साथ, लेबरसली परिश्रम पूर्वक, परिश्रम के साथ, विथ डबल कॉटन, दोहरे रंग के, दोहरे सूती कपड़ा लेकर बच्ची ने एक कुशन बनाने के लिए सोचा। उसको द लिटिल गर्ल स्टेज 3 साइड, 3 तरफ से उसको सिल दिया। बट व्हाट इट फिल इट विथ, लेकिन अब उसमें भरे क्या हो, दैट वाज द क्वेश्चन। ये सबसे बड़ी समस्या थी उसके सामने, बच्ची के सामने, आखिर वो भरे क्या उसमें। सिल तो दिया उसको, तो क्योंकि गद्दी टाइप उसको बनाना होता है ना। द ग्रैंड मदर वाज आउट इन द गार्डन, दादी माँ बगीचे में थी।
एंड सी वंडर्ड इनटू मदर्स बेडरूम, इसलिए बच्ची अपने माँ के बेडरूम में गई टू लुक फॉर स्क्रैप्स, वो भरने के लिए, टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए माँ के कमरे में गई। ऑन द बेड टेबल सी डिस्कवर्ड अ ग्रेट मेनी शीट्स ऑफ फाइन पेपर। हुआ क्या कि वहाँ बच्ची ने एक टेबल के ऊपर, एक मेज पर कई पेज देखे कागज के, अच्छे कागज रखे हुए थे। गेदर्ड देम अप, उन्हें ले ली, टोर, फाड़ दिया, देम इनटू टीनी पीस एंड स्टफ हर केज, देन सेड अप द फोर्थ साइड, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, उसको फाड़ दिया, एंड स्टफ हर केज, और उसको भर दिया एक जगह, जो जगह खाली थी चौथी तरफ, उस तरफ से उसको छोटे छोटे टुकड़ों में उस पेज को करके और बच्ची ने उसको उसमें भर दिया। द नाइट देयर वाज ह्यू एंड क्राई इन द हाउस, रात में घर में हंगामा हो गया। ह्यू एंड क्राई, रात में घर में शोरगुल मच गया, हंगामा हो गया। फादर्स ग्रेट स्पीच फॉर द पोर्ट अथॉरिटी हैड बीन लॉस्ट, और पिताजी का बंदरगाह के प्रशासन के लिए तैयार किया गया भाषण खो गया। पिताजी ने बंदरगाह पर भाषण देने के लिए कुछ कागज पर तैयार किया था, वो गायब हो गया। दरअसल जो बच्ची ने वहाँ कागज पाया, उस कागज में, उस पेपर पर पिताजी ने भाषण तैयार करके लिखा था। बंदरगाह के प्रशासनिक अधिकारियों के बीच में भाषण देना था उन्हें। और रूम्स वर सर्च्ड, पूरा कमरा खंगाल लिया गया, ढूंढ लिया गया। सर्वेंट्स क्वेश्चन, और नौकरों से भी प्रश्न पूछ लिए गए। फाइनली मदर केम इनटू केजियाज रूम, अंत में माँ भागते भागते केजिया के कमरे में आई। केजिया, आई सपोज यू डिडंट सी सम पेपर्स ऑन अ टेबल इन आवर रूम। माँ ने पूछा, केजिया क्या तुमने मेरे कमरे से कुछ कागज लिए हो, कुछ पेपर्स लिए हो क्या? मुझे लगता है कि तुमने नहीं लिया होगा। ऐसा केजिया की माँ ने चीखते हुए बच्ची से पूछा। ओ है, सी सेड, उसने कहा, अरे हाँ, आई टोर देम अप फॉर माई सरप्राइज, वो तो मैंने फाड़ दिया उन्हें। किसने कहा? केजिया ने कहा कि मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर, चीख पड़ी माँ। क्या? कम स्ट्रेट डाउन टू द डाइनिंग रूम दिस इंस्टेंट, इसी क्षण नीचे ड्राइंग रूम में आ जाओ, माँ ने कहा बच्ची से। एंड शी वॉज ड्रैग डाउन टू वेयर फादर वॉज पैसिंग टू एंड फ्रो, और उसे घसीट कर वहाँ लाया गया जहाँ उसके पिताजी इधर उधर घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे, हैंड्स बिहाइंड हिज बैक, अपना हाथ पीछे किए हुए। वेल, ही सेड शार्पली, आवेश में आकर उन्होंने कहा। मदर एक्सप्लेन्ड, माँ ने स्थिति को स्पष्ट की, बताया कि बिटिया कागज ले गई और फाड़ डाली। ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, डिड यू डू दैट? वो रुक गए वहीं और उन्होंने बच्चे की तरफ घूर कर देखा और कहा, क्या तुमने यह शैतानी की? नो 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 सेस, वो धीरे से कही, नहीं। मदर यानी केजिया की माँ, गो अप टू हर रूम एंड फेच डाउन दी डैमेंट थिंग, जाओ इसके कमरे में और फेच डाउन दी डैमेंट थिंग, जो भी इसके कमरे में जाओ और वहाँ थैले यानी जो बनाई है उस वस्तु को ले आओ, यानी पिन कुशन को। सी दैट द चाइल्ड पुट टू बेड दिस इंस्टेंट, बच्ची को इसी क्षण उसके बिस्तर पर लेटा दो। अब इसी समय बच्ची को बिस्तर पर उसके लेटा दो, जाओ इसके पिन कुशन को ले आओ। क्राइंग टू मच टू एक्सप्लेन, सी ले in the shadowed room, watching the evening night make a sad little pattern on the floor.
चीखती चिल्लाती रोती हुई वो बच्ची अपने बात को कहना चाहती थी, अपने स्पष्टीकरण को देना चाहती थी, ऐसा देने के लिए परेशान थी, और वो अंधेरे कमरे में लेटी हुई रो रही थी और शाम की रोशनी में फर्श पर बनते छोटे उदास नमूनों को देखती रही। देन फादर केम इनटू द रूम विथ अ रूलर इन हिज हैंड। तभी पिताजी कमरे में छड़ी लेकर आ गए। आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, ही सेड। पिताजी ने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए दंड दूंगा। ओ नो नो, सी स्क्रीम्ड हिडिंग अंडर दी बेड क्लॉथ्स। वो बिस्तर के नीचे छिपने लगी, छिपते हुए करे नहीं नहीं। ही पुल्ड देम असाइड, वो एक तरफ जाके छिप गई। ही पुल्ड देम असाइड, पापा ने बिस्तर की चादर को एक और कर दी। सिट अप, ही ऑर्डर्ड, पापा ने उसको कहा उठ कर बैठो। एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर फैलाओ। यू मस्ट बी टॉट वंस एंड फॉर ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू। इस लाइन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आप लोगों के हित में है। यू मस्ट बी टॉट वंस, तुम्हें एक बार सदा के लिए पाठ सिखाना जरूरी है। क्योंकि ऑल नॉट टू टच व्हाट डज नॉट बिलोंग टू यू, जो चीज़ तुम्हारे काम की नहीं है, जो चीज़ तुम्हारी नहीं है, उसे तुम्हें नहीं छूना चाहिए। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये तो आपके जन्मदिन के लिए, उपहार के लिए था। डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। पर यह तो बच्ची के छोटी गुलाबी हथेलियों पर छड़ी पड़ी। छोटी छोटी जो गुलाबी हथेलियाँ थी उसके ऊपर छड़ी पड़ी। वो कह रही थी कि आपका बर्थडे था, लेकिन तब तक उसके हाथों पर छड़ी पड़ चुकी थी। पापा ने उसे दंड दे दिया था। आवर्स लेटर, घंटों बाद, व्हेन ग्रैंड मदर हैड रैप्ड हर इन साल, जब उनकी दादी माँ ने उन्हें एक सॉल में लपेट लिया, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर, और उसे झूलने वाली कुर्सी पर जब झुलाया, द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, तो बच्ची दादी माँ के बदन से लिपट गई। क्लंग, लिपट गई, टू हर सॉफ्ट बॉडी, उनके नरम शरीर से। व्हाट डिड गॉड मेक फादर्स फॉर, सी सॉफ्ट, सिसकियाँ भरते हुए बच्ची ने कहा क्या कि भगवान ने, परमात्मा ने पापा लोगों को किस लिए बनाया। हियर्स अ क्लीन हैंकी डार्लिंग, ब्लो योर नोज। या लो साफ रुमाल मेरी लाडली, नाक साफ कर लो। गो टू स्लीप, सो जाओ। पेट, यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, सुबह तक तुम सब कुछ भूल जाओगी। I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. मैंने तुम्हारे पापा से बताने की कोशिश की, लेकिन वे आज बहुत गुस्से में थे, वो सुनने के लिए तैयार नहीं थे। But the child never forgot. लेकिन बच्ची, बाप रे, ये बच्ची कैसे भूलती, कभी नहीं भूल सकी। Next time she saw him, they quickly but both hands behind her back, and a red color flew into her cheek. कभी नहीं भूल सकती थी। नेक्स्ट टाइम, अगली बार, when she saw him, जब उसने अपने पापा को देखा, she quickly put both hands behind her back, तो जल्दी से उसने अपने दोनों हाथ को छिपा लिया। and a red color flew into her cheek, और उसके चेहरे पर लालिमा दौड़ पड़ी। क्यों जानते हैं? क्योंकि पापा ने उसको डंडे से मारा था, इसलिए उसने अपने पापा को देखते ही अपने हाथों को छिपा लिया। आगे देखें। द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। मैकडोनाल्ड्स नाम का कोई व्यक्ति उसके पड़ोस में रहता है।
दे हैड 5 चिल्ड्रन, उसके पास 5 बच्चे हैं। लुकिंग थ्रो अ गैप इन द फेंस द लिटिल गर्ल सा देम प्लेइंग टैग इन द इवनिंग। अपने फेंस दीवार, 4 दीवारी के गैप जो था उसमें से उस बच्ची ने देखा कि वो उसके छोटे छोटे बच्चे जो थे वो शाम को पापा के साथ खेल रहे थे। द फादर विद द बेबी, पिताजी बच्चों के साथ थे। माओ ऑन हिज सोल्जर्स, माओ जो छोटी सी बच्ची थी उनके कंधे पर बैठी थी। 2 लिटिल गर्ल्स हैंगिंग ऑन टू हिज कोट पॉकेट्स रैन राउंड एंड राउंड द फ्लावर्स बेड्स। वो और 2 बच्चियां उनके कोट के पॉकेट को पकड़े हुए फूलों की क्यारियों के अगल बगल घूम रही थी, सेकिंग विथ लाफ्टर, और हंसी खुशी के साथ खेल रही थी। वन सी सा द बॉयज टर्न द हॉर्स ऑन हिम एंड ही ट्राइड टू कैच देम लाफिंग ऑल द टाइम। और तभी उन्होंने देखा कि उसके बेटे ने पापा के ऊपर पाइप से पानी छिड़क दिया और पापा हंसते हंसते उसे पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। यानी बच्ची ने ऐसा देखा अपने पड़ोस में जिनका नाम था मैकडोनाल्ड को देखा अपने बच्चों के साथ ऐसे खेलते हुए, तो थोड़ा सा मन में उदास हुई, आखिर मेरे पापा मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं खेलते हैं। Then it was she decided there were different sort of fathers। अब इसी बात को लेकर बच्ची ने धारणा बना ली कि पिता भी अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। सडनली वन डे मदर बिकेम इल, अचानक माँ बीमार हो गई एक दिन। एंड सी एंड ग्रैंड मदर वेंट टू हॉस्पिटल, और दादी माँ और माँ दोनों अस्पताल गई दवा लेने के लिए। द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलॉन इन द हाउस विथ एलिस। अब प्यारी बच्ची बेचारी केवल दादी घर में जो भोजन बनाने वाली एलिस थी, द कुक भोजन बनाने वाली थी, उसके साथ अकेली रह गई। दैट वाज ऑल राइट इन द डे टाइम, दिन भर तो सब कुछ अच्छा था। बट वाइल एलिस वाज पुटिंग हर टू बेड शी ग्रू सडनली अफ्रेड। लेकिन हुआ क्या, जब शाम हो गई, जब एलिस ने उसे पलंग पर लिटाया तो उसे डर लगने लगा बिटिया को, क्योंकि कभी अकेले तो लेटी नहीं थी। What I'll do if I have nightmare, यदि मुझे कोई रात में बुरा सपना आया तो मैं क्या करूँगी। सी आज उसने ऐसा सोचा। I often have nightmare and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery। बच्ची ने सोचा कि अगर मुझे रात में बुरा सपना आएगा तो मैं क्या करूँगा। मुझे अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर दादी माँ मुझे अपने बिस्तर पर ले जाती हैं, मैं अंधेरे में नहीं रह सकती, मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है। ग्लाड गर्स वेस्प्रे, मुझे आवाज़ें सुनाई पड़ने लगती है। ऐसा सब बच्ची सोचने लगी। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड सेड एलिस। एलिस ने कहा जाओ बच्ची तुम सो जाओ। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, बच्ची से एलिस ने कहा तुम सो जाओ, और बच्ची से कहा अपनी सॉक्स को उतार दो। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड पोक योर पुअर पा। उसने कहा कि जाओ तुम सो जाओ और तुम चीख मत मारना वरना पापा जाग जाएंगे। डोंट यू स्क्रीम यानी चीख मारना, एंड ओक योर पुअर पा, तुम्हारे बेचारे पापा जो हैं वो जाग जाएंगे, तुम चिल्लाना उल्लाना नहीं, जाओ सो जाओ। बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम, लेकिन ठीक वही हुआ साहब, ठीक वही हुआ, वही पुराना सपना बच्ची को आया। अ बूचर एक कसाई विथ नाइफ चाकू लिए एंड अ रोप एक रस्सी लिए, हु केम नियरर एंड नियरर, नज़दीक आता चला जा रहा था बच्ची के सपने में। स्माइलिंग दैट ड्रेडफुल स्माइल, भयानक तरीके से वो मुस्कुराते हुए डरावनी मुस्कुराहट लिए हुए चला आ रहा था। व्हाइल सी कुड नॉट मूव, कुड ओनली स्टैंड स्टिल, क्राइंग आउट ग्रैंड माँ ग्रैंड माँ। व्हाइल सी कुड नॉट मूव, अब वो जब वो बच्ची इसको देख रही थी स्वप्न में तो वो बिल्कुल हिलडुल नहीं पाती थी, स्थिर खड़ी रहती थी, चीख मारती थी,
ग्रैंड माँ करके चीख मार, दादी माँ। शी woke staring to see father's beside her bed, a candle in his hand. ऐसा चिल्लाते चिल्लाते दादी माँ चिल्लाते जैसे वो जाग जाती है। जैसे ही जागती है वो पाती है उसके पिताजी उसके बेड के बगल में खड़े हैं, अ कैंडल इन हिज हैंड, और उनके हाथ में एक मोमबत्ती है। व्हाट्स द मैटर, ही सेड। पिताजी ने कहा, क्या बात है? ओह, अ बूचर, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। उसने कहा, नहीं, वो एक कसाई, एक चाकू। ऐसा बच्ची ने कहा कि आई वांट ग्रैनी, मुझे दादी माँ चाहिए, ग्रैनी दादी माँ। ही ब्लू आउट द कैंडल, उन्होंने फूंक मारकर मोमबत्ती को बुझा दी। बेंड डाउन, नीचे झुके, एंड काट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, अब बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया। कैरिंग हर एलॉन्ग दी पैसेज टू दी बिग बेडरूम, और उससे वहाँ से अपने शयन कक्ष में, अपने बेडरूम में लेकर चले गए। और न्यूज़पेपर वाज ऑन द बेड, अ हाफ स्मोक्ड सिगार वाज नियर हिज रीडिंग लैम्प, एक आधा बुझा हुआ सिगार और न्यूज़पेपर, सिगार रीडिंग लैम्प के पास था और बेड पर न्यूज़पेपर रखा हुआ था। ही पुट अवे द पेपर, उन्होंने पेपर को हटा दिया। थ्रू द सिगार इनटू द फायर प्लेस, और उन्होंने उस जो आधे पिए हुए सिगार को अंगीठी में फेंक दिया। देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड, और बहुत सावधानीपूर्वक बच्ची को अपने पास लेटा लिए। ही ले डाउन बिसाइड हर, उसके बगल में लेट गए। हाफ एस्लीप स्टिल, अभी भी अर्ध निद्रा में थी केजिया। स्टिल विद द बुचर्स स्माइल ऑल अबाउट हर, उसके मन में अभी भी उसके मुस्कुराते हुए कसाई के सपने दिखाई पड़ रहे थे। इट सीम्ड सी क्रेप्ट क्लोज टू हिम, स्नगल्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और जब ऐसा वो देख रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे अभी भी उसके पास वो कसाई मुस्कुराहट भी चारों तरफ आ रहा है। वह पापा के निकट और खिसकती गई और उनके बाहों के नीचे अपना सिर छिपा लिया, अपने सिर को पापा के बाहों के नीचे छिपा लिया और उनके शर्ट को बहुत टाइट ढंग से पकड़ लिया। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, सी ले स्टिल, अब वहाँ अंधेरे का कोई मामला नहीं रह गया था साहब। वह स्थिर लेट गई पापा के पास। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स, ये अपना पैर मेरे पैर में रगड़ लो, एंड गेट देम आर, और तुम्हें गर्मी मिल जाएगी। ऐसा बच्ची से किसने कहा? पापा ने कहा। ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, ट्राइड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, थके होने कारण बच्ची के सोने से पहले ही सो गए। अ फनी फीलिंग केम ओवर हर, एक बहुत ही विचित्र भाव जागा उस बच्ची के मन में। पुअर फादर, बेचारे पिता, नॉट सो बिग, इतने भीमकाय न थे। ही सो बिग आफ्टर ऑल, एंड विथ नो वन टू लुक आफ्टर हिम, और कोई उनकी देखभाल करने वाला भी नहीं था। ही वॉज हार्डर दैन ग्रैंड मदर, वो अधिक दादी माँ से भी अधिक कठोर शरीर के हैं। बट इट वॉज ए नाइस हार्डनेस, लेकिन ये पापा की कठोरता भी बहुत अच्छी है। बच्ची के मन में आ रहा है कि पापा कठोर हैं, पापा की बॉडी उतनी सॉफ्ट नहीं जितनी दादी माँ से उसे एहसास मिलता था लिपटने पर, लेकिन पापा की ये कठोरता बहुत अच्छी है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वाज टू ट्राई टू बी मिस्टर मैकडोनाल्ड, वो बहुत कठिन परिश्रम करते हैं, मैकडोनाल्ड नहीं बन सकते। सी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, उनके लिखे हुए हमने पेज को फाड़ दिया। सी स्टायर्ड सडनली, अचानक वो हिली, एंड साइड, और आँख भरी। व्हाट्स दैट मैटर, क्या मामला है? आज हर फादर, उसके पिताजी ने पूछा। एनदर ड्रीम, कोई दूसरा सपना फिर आ गया क्या बेटी?
ओह सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड्स ऑन योर हर्ट, मेरा ये सिर आपके हृदय पर है। आई कैन हियर इट गोइंग, मैं इसकी धड़कनों को सुन सकती हूँ। व्हाट ए बिग हर्ट यू हैव गॉट फादर डियर, आपका हृदय कितना विशाल है प्रिय पापा। डियर फादर, व्हाट अ बिग हर्ट यू हैव गॉट, आपका हृदय कितना विशाल है। तो ये कहानी तो यहीं ख़त्म हो जाती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हर पिता का हृदय अपने बच्चों के लिए इतना ही विशाल होता है। हर पिता अपने बच्चों को जान से अधिक प्यार करते हैं, अपने बच्चों को बहुत प्रेम करते हैं पिता, और वो चाहते हैं कि उनके बच्चे उनके अथक प्रयासों को सार्थक करते हुए अपने जीवन में सफलता अर्जित करें। निश्चित तौर पर हमें माता पिता अपने बड़ों के भावनाओं को समझना चाहिए। 2 मिनट की डांट से हम कभी यह नहीं कह सकते कि इनका स्वभाव, इनका व्यवहार हमारे प्रति अच्छा नहीं है। वे हमें डांटते हैं, वे हमारे लिए छेनी और हथौड़ी का काम करते हैं, क्योंकि पत्थर में भगवान की आकृति निकालने के लिए भी इंसान को उसे काटना पड़ता है, गढ़ना पड़ता है, बनाना पड़ता है, तब उसमें लोगों की श्रद्धा जागती है और उसे भगवान मानते हैं और उसकी दिन रात पूजा करते हैं। हमें अपने माता पिता को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि उनके डांट, उनकी फटकार या कभी किसी चीज़ के लिए मना कर देने की बात को कभी भी इस भावना से न जोड़ें कि हमारे मम्मी पापा हमें प्यार नहीं करते। ज़रूरी नहीं कि हर एक किसी के बच्चे के मम्मी पापा उसे कंधों पर बैठा के घुमाएं, उसकी कही हुई सारी वस्तुओं को उसके लिए ला कर दे दें। कुछ के माता पिता सजो कर हर चीज़ें बच्चे के लिए रखते हैं, चाहे वो धन हो, चाहे वो संपत्ति हो, चाहे फिर वो प्यार ही क्यों ना हो, वो आपके लिए सजो रहे हैं। आप उसकी कीमत समझें। इस चैप्टर में जो भी वर्ड मीनिंग्स है आप उसको तैयार करें। पूरा PDF मैं आपको दूंगा क्वेश्चन आंसर का। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।